Jesus, we want you to come this morning. We want you to come and fill our homes, fill our hearts, fill our city, oh God. Because when you come, Lord Jesus, when your presence comes, everything changes, amen. When you walk into the room, everything changes. Darkness starts to tremble at the light that you bring. When you walk into the room, every heart starts burning, and nothing matters more than just to sit here at your feet and worship you. Oh, we worship you, Lord. Stop. We can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. All this, oh, it's for you, Lord. Walk into the room, sickness starts to vanish. Every hopeless situation ceases to exist. And when you walk into the room, the dead begin to rise, 'cause there is resurrection life in all you do. Yes, Lord, 'cause we love you. Never stop. We can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. Yeah, Lord, all this is for you, Jesus. Oh, so come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. So come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you, Lord. We want you. Oh, come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. We want you, Lord. Just come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. We want you, Lord. 'Cause we love you, and we'll never stop. We can't live without you, Lord, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. We'll never stop. Can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. Oh, all this is for you, Lord. How we love you, Jesus. So we say, come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. We want you.
Come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. How we want you, Lord. We want you. Oh, we want you. So come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. We want you. We want you. Come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. How we want you, Lord. We want you. 'Cause we love you. We'll never stop. Can't live without you. Jesus, we love you. Can't get enough. All this is for you, Jesus. All this is for you, Lord. Let it flow to this morning, let it flow. How we love you, Lord. Yes, we do, Jesus. आप अपने जीवन के जिस किसी मोड़ पर हैं, जिस किसी मौसम में हैं, आज की सुबह हमारे नबी जैसा कहते हैं, आपकी ये सुबह बहुत ही शुभ हो और ये एक बहुत ही सुंदर मौसम है प्रभु में जीवित रहने का, जीने का। पिछले कुछ हफ्तों से हम प्रकाशित वाक्य की किताब से बहुत ही गहराई के वचनों को सीख रहे हैं और जैसे परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं हमसे, आपने ये महसूस किया होगा कि हफ्ते दर हफ्ते परमेश्वर के वचन के प्रकाशन गहरे और गहरे होते जा रहे हैं और हम परमेश्वर के वचन को जल्दबाजी में नहीं सीखना चाहते। हम इसे मानो किसी बर्गर की तरह या किसी फ्राइज की तरह नहीं खाना चाहते, मगर हम आराम से इस वचन को खाकर इसे पचा लेना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए आज जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इस वचन में उपलब्ध है और परमेश्वर के वचन में नई और क्या बातें हैं, उन सारी बातों को सीखने से पहले, उस तरफ बढ़ने से पहले हम एक क्षण रुकना चाहते हैं और हम याद करना चाहते हैं कि हमने जो पाया है वो कितना बहुमूल्य है। मुझे इस हफ्ते कुछ लोगों ने मैसेज करके ये कहा कि जो संदेश मिले हैं उससे उनके जीवन में एक बदलाव आया है और उनका जीवन वैसा ही नहीं रहेगा, वो स्वयं वैसे ही नहीं रहेंगे। और मैं जानता हूँ कि आपके और मेरे लिए भी बातें ऐसी ही हैं और जब ऐसी कोई बात हमारे जीवन में होती है, हमारे जीवन में आती है, तो हमें उसके लिए धन्यवादित रहना है, उसे सराहना है और उसके और गहराई में हमें जाना है और आज हम वैसा ही करना चाहते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए और इस मौके के लिए, कि हम हमारे नबी के साथ ये बातें कर सके और हमारी समझ में हम और ऊंचा उठ सके, परमेश्वर के हृदय के साथ हम बेहतर जुड़ सके। इसीलिए आज की इस सुबह मेरे साथ हमारे नबी, हमारे परमेश्वर के दास प्रॉफिट शाइजो मैथ्यू है। डैड, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका इस मौके के लिए कि मैं आपके साथ यहाँ स्टूडियो में बैठकर बात कर पा रहा हूँ और बाकी सारे लोग जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं उनके तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें आपने हमें सिखाई है उनमें हम और गहरे जाना चाहते हैं क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें हमें सिखाई और ये कुछ बातें बहुत वजनदार थी और उन बातों को लेकर परमेश्वर का हृदय क्या कहता है उसमें हम गहराई में जाना चाहते हैं, हमारी समझ में हम ऊंचे उठना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए। ये हमारे लिए बहुत कीमती है, ये अनुग्रह और ये मौका जो एक तोहफे के समान है कि हम आपके साथ बैठकर बातें कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही कीमती है। मैं स्वयं परमेश्वर से अनुग्रह मांग रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ इस बात के लिए कि हम आने वाले कल के समय में खड़े होकर इन बातों को समझ सके क्योंकि परमेश्वर स्वयं वहाँ पर है। मैं परमेश्वर से अनुग्रह मांग रहा हूँ ताकि मैं उस आने वाले कल को देख सकूँ और समझ सकूँ और उस कल में परमेश्वर के लोगों को जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं मैं ले जा सकूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो लोग जो बहुत ही ध्यान से इन वचनों को सीख रहे हैं प्रभु उनकी अगुवाई आगे भी करते रहेंगे। देखिए, इस मौसम में परमेश्वर जितनी चीज़ें मुझे सिखा रहे हैं और जिस बारीकी से सिखा रहे हैं वो सारी बातें मैं आपको नहीं सिखा सकता। इसीलिए मैं कुछ बातों को
पहेली की तरह आपके साथ बांटता हूँ, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह भी स्वयं किया करते थे। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ आपको कि हमारी सभाएं जो है वो साधारण सभाएं नहीं हैं। ये वो सभाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके प्रभु अपनी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। और हम जहाँ पर हैं, जिस मोड़ पर हैं इस मौसम में, चीज़ें कुछ इस तरह होने जा रही हैं जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की है। इसीलिए शुरुआत में जब हमने आपसे कहा था कि ये मध्य रात्रि का समय है, मैं सही मायने में ये कह रहा था कि ये मध्य रात्रि का समय है, दूल्हे का आना निकट है। और इसीलिए मुझे चिंता भी होती है उन लोगों की जिन्होंने मेरी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया होगा, उन लोगों के लिए भी जो इन बातों को थोड़े समय के लिए गंभीरता से लेते हैं। इस तरीके के लोग जो है एक बड़े ही खतरे का सामना कर रहे हैं। और इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ जब हम इन बातों को दोहरा रहे हैं आज, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि हमारे श्रृंखला के अनुसार हमें उन 7 चिट्ठियों की तरफ बढ़ना चाहिए जिसका हम उल्लेख पिछले हफ्तों से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये सीखें कि पतमोस के उस टापू पर यीशु मसीह ने अपने आप को किस तरह जाहिर किया था। हम उस वचन पर हैं और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ प्रचार करके आगे बढ़ चलूं, मगर मैं ये चाहता हूं कि हम समय ले, साथ सीखें और आप मेरे साथ इस यात्रा पर चले ताकि हम सब उस जगह पर एक साथ जा सकें। मैं भी स्वयं इस यात्रा में आपके साथ में हूँ। मैं भी पूरे सप्ताह भर आज के दिन से पहले मैं मानो एक युद्ध सा लड़ रहा था। तो ये मेरे लिए भी एक सफ़र जैसा ही है। हम एक परिवार हैं और हम इन बातों में साथ हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ सके हैं आज। बस हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि जैसे हम इस विषय पर पिछले 4 या 5 हफ्तों से सीखते आ रहे हैं और चीज़ें हफ्ते दर हफ्ते बहुत वज़नदार होती जा रही हैं। कभी ऐसा लगता है कि हम रविवार से फिर बुधवार की सभा में जाते हैं, बुधवार से फिर रविवार की सभा, और कभी कभी बुधवार, गुरुवार और रविवार तीनों जो है एक एक करके हम हर सभा में कुछ भारी भरकम चीज़ों को सीख रहे हैं। कई लोग हमें जो है चिट्ठियां लिख रहे हैं या हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि वो उनके साथ ऐसा कभी घटा नहीं है कि वो अपने घरों में बैठे हैं, परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति का मानो एक बोझ सा है जो उन्हें मानो झंझोड़ के रख देता है। वो रोने लगते हैं, कांपते हैं। और हमने इन वचनों को कई बार पढ़ा है और हमने इन विषयों पर कई बार संदेशों को सुना भी है, लेकिन ये सभाएं पहले जैसी नहीं है। मानो ये जो चिट्ठियां जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, 7 चिट्ठियां मानो जिंदा हो गई हैं। और हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अनुग्रह बहुत ही अनोखा है। मैं सोचता हूँ कि इस बुधवार हम और गहरे जाएंगे, हम और गहरे जाएंगे। हमने पिछले या उसके पहले वाले हफ्ते हमने जो है दानवों को हराने के विषय में सीखा था और मैंने आपको सिखाया था कि एक बड़े दानव का सामना करना और एक राजा जिसके कंधों पर सरकार है उसके सामना करने में क्या अंतर है। हमने सीखा कि इन दोनों ही का किस तरह सामना किया जाना चाहिए, उसमें क्या अंतर होता है। और बुधवार के रोज़ मैं उस विषय में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और अगर लोगों ने अभी तक उस संदेश को नहीं सुना है, उन बातों को नहीं सीखा है, तो बुधवार से पहले उन वीडियोस को देखना, उन्हें सीखना ज़रूरी है ताकि हम एक पन्ने पर रह सके, साथ आगे बढ़ सके। आमीन। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपने उन संदेशों को अब तक सुना नहीं है तो आप दोबारा से रिवाइव नेशंस के यूट्यूब पर चैनल पर जा सकते हैं और उन संदेशों को खोजकर उन्हें देख सकते हैं। कुछ बुधवार पहले हमने उस विषय पर सीखा था, आत्मिक युद्धों के विषय में। पहले सप्ताह में हमने सीखा था कि किस तरह एक दानव को नीचे गिराना है, किस तरह उससे लड़ना है। और हर बार हम एक ही रीति से आत्मिक युद्ध नहीं लड़ सकते।
और पिछले बुधवार को हमें पास्टर ने सिखाया था कि किस तरह जो है किसी सिस्टम को जो हमारे विरुद्ध जब आता है तो वो आत्मिक युद्ध में किस तरह उससे लड़ना है, दोनों में अंतर क्या है। तो ज़रूरी है कि आप इन चाबियों को सीखें, समझें, उससे आपका जीवन ज़रूर बदल जाएगा। परमेश्वर के दास, इस मौसम में कितना ही कुछ हो रहा है। हम कोविड-19 की वजह से लगभग 3 महीनों से अपने घरों में बंद हैं और हाल ही में जब मैं समाचार सुन रहा था तो एक नया भय लोगों के अंदर समा रहा है कि अब जब चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं तो कहीं दोबारा से ये सारा जो है ख़तरा वापस ना आ जाए, इस बात का डर लोगों में है। इस विषय में आपका क्या मानना है? एक चीज़ जो बहुत दिलचस्प है वो ये कि घटनाओं के होने से पहले ही परमेश्वर ने हमको वचन उसके विषय में दे दिए थे। तो अगर आप कैलेंडर को देखें, हमने जो बनाया था उसमें जून महीना जो है वो गैदरिंग का यानी कि बटोरने का महीना हमने ऐसा करके लिखा था। मैं नहीं जानता कि हमने वचन कौन सा लिख रखा था, शायद मीडिया टीम हमारी मदद करे उसको जानने में। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें फिर से दोबारा एकत्रित होने के लिए, मिलने के लिए मौका देंगे और इस महीने हम मिल सकेंगे। लेकिन कुछ कमियां हैं। अगर आपको याद हो तो 3 महीने पहले हमने कहा था कि 3 महीने में चीज़ें बदलेंगी, हम उन्हें बदलता देखेंगे और अब 3 महीने के बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं। जिस बात पर हमें ध्यान देना है वो ये है कि जिस प्रकार का असर इस बीमारी का हुआ है, ऐसा असर किसी और बीमारी के कारण नहीं हुआ था। साथ ही इस बीमारी को लेकर बहुत सारा छलावा भी हो रहा है, बहुत सारे झूठ फैलाए जा रहे हैं इस बीमारी को लेकर और बहुत सारे लोग डर भी लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको कुछ और दिनों तक बंद रखा जा सके। तो पहले शुरुआती दिनों में मीडिया हम सबसे यही कह रहा था कि घर पर रहो, घर पर रहो, क्योंकि अगर तुम घर पर नहीं रहोगे तो तुम किसी के मौत का कारण बन जाओगे। अब मीडिया ये कह रही है कि सुनो, लोगों को बाहर आना है, अपना विरोध जो है उसको जाहिर करना है। उसके ऊपर WHO अब बाहर आता है और ये कहता है कि देखो ये बीमारी जिस तरह हम सोचते थे उस रीति से नहीं फैलती है। तो देखिए आप कितनी बातें हो रही हैं। 3 महीने सारे संसार भर के कामकाज इनके कहने पर बंद कर दिए गए और अब ये बाहर आते हैं और कहते हैं कि शायद हमसे गलती हो गई, हमें ये बीमारी कैसे फैलती है ठीक समझ नहीं आया। अब जब वो डर एक तरफ रह गया है तो अब वो कह रहे हैं कि लोगों ने अपना विरोध जताना है, विरोध जाहिर करना है। तो ध्यान दे, अगर हम तो दुश्मन बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, बहुत गंभीरता वाली चीज़ें कर रहा है। एक रीति से 2 या 3 चीज़ें हैं जो उसने तैयार करके रखी हुई हैं और ज़रूरी है कि कलीसिया जो है इस आने वाले मौसम का फ़ायदा उठाए। मैं कोशिश करूँगा कि किसी बुधवार के रोज़ हम इन बातों को और जो है विस्तारित रूप से कर सके और बता सकूँ आपको कि प्रभु मुझे क्या दिखा रहे हैं। वो बातें शायद आज के लिए ठीक नहीं होंगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ आ रहा है जो कोरोना से भी भयंकर होगा और उस बात को लेकर हमें प्रार्थना में बने रहना है और दुश्मन उस बात को मानो कोरोना का दूसरा भाग के रूप में जाहिर करेगा और आप देखना शुरू करोगे किस तरह दुश्मन अपने आप को इस पृथ्वी पर पहले जैसे कभी नहीं किया था वैसे जाहिर करना शुरू करेगा। वो मौसम भी आने को है। इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों में परमेश्वर हमें जो है मौका दे रहे हैं जिसका हमने, कलीसिया ने, फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं कुछ बातों को पहेली की तरह कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ और जो सुन सकते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जिनके कान हो वो सुने कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। कुछ देशों की सरकारें, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, नॉर्थ अमेरिका ही नहीं, कुछ अफ्रीकी देश, कुछ
एशियाई देश, भारत देश भी, कुछ सरकारें हैं जिन्होंने ये जो दौर है, ये जो मौसम है, इसका अध्ययन किया है और इसे देखकर उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास और हम इसका इस्तेमाल करके अपना शासन बरकरार रख सकते हैं। और आप इसे देखोगे आने वाले दिनों में कि कुछ राष्ट्र चाहेंगे कि बीमारियां उनके देश में बनी रहें। आप देखोगे ऐसी चीज़ें कई राष्ट्रों में दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि अब ये मदद के विषय में नहीं है, अब ये सत्ता में रहने के विषय में है और अपना पावर बनाए रखने के विषय में है। इन बातों से और कितने ही सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, इसीलिए हम आगे इस बात को लेकर नहीं जाएंगे। ये बातें हम किसी बुधवार के दिन करेंगे। बुधवार का रोज़ जो है ऐसी ही कुछ व्यवहारिक बातों के लिए हमने रखा है जहां हम ये बातें सीखते हैं, इसीलिए बुधवार के दिन आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े। हमें अभी ये खबर मिली है कि मॉन्ट्रियल की जो कलीसियाँ हैं वो इस महीने के अंत तक उन्हें जो है अनुमति दी जाएगी कि वो फिर से खुलेंगी और लोग इकट्ठा हो सकेंगे, लेकिन कुछ नियम हैं जो लागू किए गए हैं। हम जानते हैं कई लोग इसका आनंद उठाएंगे क्योंकि कितने ही महीने हो गए हम साथ मिल नहीं सके हैं। तो ये जो कुछ नियम लागू किए गए हैं बहुत ही अजीब से हैं, कुछ ऐसे नियम जो हम अमेरिका में भी नहीं देखते। तो ये किस प्रकार के नियम हैं? नियम जैसे वो कह रहे हैं कि कलीसिया में लोगों ने जो है गीत नहीं गाने हैं। वो कह रहे हैं कि आपने कलीसिया में मुंह खोल कर प्रभु को महिमा नहीं देनी है और उस बात के लिए लोगों को वो रोक रहे हैं। ये ऐसे नियम हैं जो अमेरिका में भी नहीं है, जबकि वहाँ पर कोरोना पीड़ित लोगों की संख्या हमसे कई ज़्यादा है। इस एक ही बात से हमने ये सवाल करना है कि हमारी इस दुनिया में इस भाग में क्या हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर के लोग जो हैं, हमारे जो लोग हैं, वो उस दर्शन को याद रखते हैं जो परमेश्वर ने कुछ महीना 1.5 महीने पहले हमसे जिसके द्वारा बात की थी। क्या आपको वो दर्शन याद है? वो कोयल के गाने का दर्शन। हाँ, वो एक बुधवार के रोज़ वो दर्शन आपने देखा था और आपने कहा था कि उस दर्शन में एक कोयल है जो गा रही है और एक मगरमच्छ उसे खा रहा है। एक गीत गाती हुई कोयल जिसे एक पुराना मगरमच्छ खा रहा है। हाँ, हमें याद है। और ये बात कितनी ज़रूरी है कि हमने ये पता था मगर हमने शायद उसके लिए उतनी प्रार्थना नहीं की कितनी करनी चाहिए थी। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ पता होती है और हम प्रार्थना नहीं करते उसके लिए। हम कुछ दिन करते हैं प्रार्थना, उसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि दुश्मन किस तरह सरकार का इस्तेमाल कर कर उन्हीं चीज़ों को हमारे जीवनों में लेकर आ जाता है। पर ठीक है, मुझे लगता है कि हम सही समय काल में हैं और हम प्रार्थना पूर्वक तय करेंगे कि हमें किस प्रकार इस बातों में आगे बढ़ना है। बस जी, मैं अगर आप मौका दें मुझे तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखी हैं। विशेष करके पिछले हफ्ते आप प्रकाशित वाक्य की किताब से हमसे बातें कर रहे थे और आपने बताया हमें कि किस तरह यूहन्ना जब पतमुस के टापू पर था वो उस आवाज़ की तरफ मुड़ा और उसने मसीह यीशु को जो है उन 7 दीवटों के बीच में खड़ा पाया। और जब आप इन बातों को पिछले हफ्ते हमें बता रहे थे, आपने एक क्षण के लिए पहरेदारों की बात की थी। और जहाँ तक मेरी समझ है, एक पहरेदार सिर्फ वो नहीं होता जैसे कलीसिया में माना जाता है कि लोग इकट्ठा हो जाते हैं, साथ में आते हैं, मिलकर मध्यस्थी करते हैं। जितना मैं समझता हूँ ये वो लोग थे जो निरंतर जागते रहते थे। ये लोग जो निरंतर ध्यान देते रहते थे, देखते रहते थे कि कहीं से कोई हमला ना हो। और हम देखते हैं कि यूहन्ना पतमुस के टापू पर है, वो सबसे अलग थलग हो गया है। और मुझे याद है कुछ समय पहले आप कलीसिया में सिखा रहे थे, जब हम कलीसियाओं में कुछ मरम्मत कर रहे थे, उस दौरान आपने कुछ शिक्षण हमें दिए थे और हमें इस बात की खुशी है, उत्साह है कि अब हम उन बातों में प्रवेश कर पा रहे हैं और हम साथ मिलकर इस बहुत ही अद्भुत पुस्तक को सीख पा रहे हैं।
और मुझे याद है उस दौरान आपने हमसे कहा था कि किस तरह यूहन्ना ऐसी परिस्थिति में था जहाँ उसके पास से सब कुछ छीन लिया गया था। सब कुछ, आराम की चीज़ें, जीवन को आनंद देने वाली चीज़ें, उसके मित्र, कुछ भी नहीं था उसके पास। और यूहन्ना जो है वहाँ पर बिल्कुल अकेला था, अकेला रह रहा था। और अब हम इज़ीकियल के जीवन से भी पढ़ते हैं जहाँ पर वो कहता है कि वो कबार नदी के तट पर बैठा हुआ था। वो वहाँ पर मज़े नहीं कर रहा था, उसने अपने आप को अकेला कर दिया था। जो उसकी मन की मर्ज़ी थी वो वैसा कुछ नहीं कर रहा था, वो बस वहाँ पर बैठा हुआ था। और जब मैं ये पढ़ रहा था तो एक विचार मेरे अंदर आया, क्योंकि मुझे याद है आपने हमें रोशनी के विषय में कुछ सिखाया था। और उस शिक्षण के दौरान आपने हमसे कहा था कि किस तरह हमें उस रोशनी को अपने जीवन में ले लेना है। और उसके बाद बुधवार के ही दिन आपने हमसे उसी रोशनी के विषय में कहा था कि किस तरह उसे अपने जीवन में हमें ले लेना है और अपने जीवन से उसी रोशनी को प्रतिबिंबित करना है और उसी रोशनी का अपने जीवन से विचलन करना है, या दूसरे शब्दों में उसी रोशनी को अपने जीवन से एक तरीके से हटाना है। तो मेरा सवाल यह है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में ऐसा करती हैं कि हम रोशनी को जो ले रहे हैं वहाँ से हटकर हम रोशनी नहीं ले पाते अपने जीवन के अंदर, और किस तरह हम हमारे जीवन में उस रोशनी को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा ऐसा विचार है कि यूहन्ना और इज़ीकियल ऐसा कुछ कर रहे थे जो हमें भी करना है, जो मुझे करना है। ये जो विषय है परमेश्वर के जाहिर होने का, ये एक आसान विषय नहीं है जो मैंने आप लोगों को सिखाया है। और मुझे लगता है कि लोग भी इस बात को शायद कभी जान नहीं पाएंगे कि आत्मा में सारी चीज़ों के पीछे क्या क्या होता है कि मैं इन बातों को परमेश्वर से पा सकूं, समझ सकूं और उस स्थान पर आऊं जहां पर आपको मैं इसकी समझ में चला सकूं। इसलिए हम ये देख पाते हैं कि कुछ ही लोग थे जो परमेश्वर से ऐसी मुलाकातों को, ऐसे अनुभवों को पा सके। ये सब के लिए नहीं था। इसलिए आप देखते हैं कि 12 चेलों में से केवल एक ही चेलों को जो है ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो हजारों साल भविष्य में जाकर इस दर्शन को पा सके। आपने कई जो है अगुओं के बारे में पढ़ा, नबियों के बारे में पढ़ा, मगर उनमें इज़ीकियल एक ही था। अगर आप ध्यान दें तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, इन चारों में से भी केवल दानियल वो था जिसको परमेश्वर ने जो है ये अनुमति दी या उसे ऐसा ऊंचा उठाया कि वो आगे की बातों को देख सके। तो कई बातें हैं जिनका असर इन सारी चीज़ों पर होता है। आप देखते हैं कई राजा हैं मगर सुलेमान सबसे अलग है। कई लोग शायद इस बात को लेकर ये सवाल करेंगे कि ये सारी बातें तो पुराने करार की है, नए करार का क्या। इसीलिए ज़रूरी यह है कि वो सारी बातें जो हम पुराने करार से सिखाते हैं, हम निश्चय ही उन्हीं बातों को नए करार से भी साबित कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो वही एक है। इसीलिए किसी चीज़ के प्रति ये निश्चय करना कि यही तरीका है, यही फॉर्मूला है, हमें ये देखने की कोशिश करना है कि क्या यही बातें हमें और किसी जगह पर नज़र आती हैं और कितनी बार नज़र आती है। क्या कोई चीज़ है जो इस फॉर्मूला से हटकर भी काम कर रहा है। इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना है। आप चेलों के बीच भी ऐसे ही जो है परिस्थितियों को देखते हैं। आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त किया और उनमें से कोई बड़ा या छोटा नहीं था। 12 चेले थे, मगर उसमें से एक धोखा देने वाला था। वो कौन था? उसे यीशु मसीह ने स्वयं नियुक्त किया था। यीशु मसीह ने उसे एक पद दिया था, यीशु मसीह ने उसे बुलाहट दी थी, और उसके बावजूद भी वही यीशु मसीह को धोखा देने वाला हुआ। तो देखिए, 12 में से एक तो निकल गया, बचे 11। और आप शायद ये कल्पना करेंगे कि जो बाकी 11 है उन सभी को एक जैसी अनुमति मिली है और या एक जैसी महिमा में वो चले हैं।
लेकिन ऐसा नहीं था। आप देखते हैं कि उन 11 में भी यीशु मसीह के 3 ऐसे चेले थे जिनको यीशु मसीह ने बड़े ध्यान से पढ़ा, उनका अध्ययन किया। हमें याद रखना है कि परमेश्वर कोई भी बात यूं ही नहीं करते, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो किसी को पसंद करते हैं। देखिए, परमेश्वर पसंद के आधार पर पक्षपात नहीं करते। वो भले ही कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद करते होंगे, मगर उसके आधार पर वो पक्षपात नहीं करते। अगर आप ये कहेंगे कि परमेश्वर पसंद के आधार पर पक्षपात कर रहे हैं, यानी कि वो निष्पक्ष नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं तो परमेश्वर निष्पक्ष होने के बावजूद उसके कुछ पसंदीदा लोग हो सकते हैं। देखिए, कोई मेरा पसंदीदा क्यों होता है? क्योंकि मैं किसी जिम्मेदारी को लेकर उस पर भरोसा कर सकता हूँ। कितने ही लोग हैं जिनको मैं बुला सकता हूँ, मगर मैं क्या सबको बुलाता हूँ? नहीं। मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुनता हूँ जिसके बारे में मुझे पता है जो आधे में किसी बात को अधूरा नहीं छोड़ेगा। तो कोई किसी एक विशिष्ट विभाग में मेरा पसंदीदा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं निष्पक्ष हूँ। मैं हर एक से प्रेम करता हूँ। इसीलिए मैंने ये कहा कि परमेश्वर निष्पक्ष है और वो किसी का पसंद के आधार पर जो है पक्षपात नहीं करता। और ऐसा होने के बावजूद कुछ लोग हैं जो उसके पसंदीदा हैं, और ये बातें परमेश्वर की ओर से भी नहीं है। ये लोग जो उसके पसंदीदा हो चुके हैं, ये मेहनत करके उस स्थान तक पहुँचे हैं। तो ज़रूरी यह है कि औरों ने इस बात के लिए उनसे जलन नहीं रखनी चाहिए। जो लोग पसंदीदा हैं परमेश्वर के, उनसे बेवजह हमें लड़ना भी नहीं है। तो अब बाकी जो बचे हुए 11 चेले हैं, उनमें से वो 3 जन को देखता है, 3 चेलों को, पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को। मुझे लगता है कि मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय जो है, यीशु मसीह इन तीनों के पास जाते हैं और कहते हैं चलो, और वो उन्हें उस परिवर्तन के पर्वत के ऊपर ले जाते हैं। इस बात में आप परमेश्वर के हृदय को देख पाते हो कि वो जो है विशेष करके इन 3 लोगों के पास जाते हैं। वो हर एक से प्यार करता है और हर एक की चिंता करता है। इसके बावजूद सभी लोगों को इस बड़े जो है अनुभव का हिस्सा नहीं बनाया जा सका। और इस बात पर हमें विचार करना है, इस बात की ओर हमें गंभीरता से ध्यान देना है, और इन्हीं बातों में हमें जो है पूरी कोशिश करनी है कि हम परमेश्वर के हृदय को समझ सके। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इन 3 लोगों के पास गए और उनसे कहते हैं कि सुनो, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ एक ऊंचे पर्वत पर चलो। तो यही एक बात मुझे बताती है कि यीशु मसीह को पहले से ही पता था कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो किसी साधारण से ऊंचाई की जगह पर नहीं गए थे। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर यीशु मसीह जो है, एक जगह लिखा हुआ है कि वो एक हाथ से फेंके हुए पत्थर जितनी दूरी पर वो जाकर प्रार्थना किया करते थे, उतनी दूरी पर वो प्रार्थना करते थे। तो अब यीशु मसीह इन 3 लोगों को अपने साथ लेते हैं। क्या आपके पास वो वचन खुला हुआ है? हाँ, पास हमारे पास मार्कुस का 9वां अध्याय उसका 2 वचन खुला है। ऐसा लिखा है कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। तो क्या लिखा है कि एकांत में वो लेकर गया उन्हें। एकांत में मतलब वो नहीं चाहता था कि बाकी चेले उनके साथ यहाँ पर आए। वो सिर्फ इन तीनों को लेकर गया। और यहाँ से मैं आपके प्रश्न की ओर आता हूँ। यीशु मसीह ने सभी चेलों को चुना, सभी को अभिषेक किया, लेकिन जब ये अनुभव देने की बात आई, जब इस मुलाकात की बात आई, यीशु मसीह ने सिर्फ इन 3 युवा चेलों को चुना।
ये अनुभव बाकी लोगों को नहीं दिया गया। देखिए, कोई एक ऐसी चीज़ है जिसका अनुभव आप कर सकते हैं जो आपके परिवार में किसी और ने नहीं किया है। आप कुछ ऐसी बातों का अनुभव कर सकते हैं जो बाकी चेले नहीं कर पाए। देखिए, सभी को यीशु मसीह ने चुना था, हर एक को यीशु मसीह ने नियुक्त किया था, लेकिन यह अनुभव हर एक को नहीं दिया गया। एक वचन है जो मैंने शायद 2 या 3 हफ्ते पहले जिसका उल्लेख किया था। मैंने आपसे कहा था कि किस तरह मूसा प्रार्थना किया करता था कि प्रभु मुझे आपके रास्ते आप बताएं, और वहां से उठकर वो ये कहता रहा कि प्रभु मुझे आपकी महिमा जरूर दिखाएं। और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हम उसकी महिमा को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले उसकी राहों का अंदाज़ा होना ज़रूरी है। तो उसके रास्तों को जानना और उसकी महिमा को देखना, इन दोनों के बीच में कुछ बातें हैं। वो जो बीच का भाग है उसे उसकी महिमा को देखने का न्योता कहा जाता है। और ये एक दुख की बात है कि हम में से कई लोगों ने उसके राहों को तो जान लिया है और उसके बारे में हमने किताबें भी लिख दी हैं, हमने चीज़ों को समझा है। और शायद हमने इतिहास को जाना है, आपने इतिहास का अध्ययन किया है, आपने बेदारी के इतिहास को जाना है, लेकिन इनमें से कोई भी एक चीज़ हमें इस बात के लिए तैयार नहीं करती कि हम उसकी महिमा को देख सकें। इसी कारण परमेश्वर परमेश्वर है। कि आप जो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप परमेश्वर को कभी इस बात पर विवश नहीं कर सकते कि वो आपसे मुलाकात करे। आप कुछ भी क्यों ना कर ले, आप कुछ भी करके एक बेदारी को शुरू नहीं कर सकते। देखने में वो जागृति जैसा लगेगा, बेदारी जैसा लगेगा, आपको शायद संगीत सही मिल जाए, आपकी लाइटें सही लग जाएं, लेकिन हो सकता है आप भावनाओं को भी लोगों के उसके प्रति तैयार कर ले। लेकिन अगर परमेश्वर ने ठान लिया कि वो आपसे मुलाकात नहीं करना चाहता तो वो नहीं करेगा। तो जब आप पतरस, यूहन्ना और याकूब को पढ़ते हैं, उनके जीवन को पढ़ते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या किया जिसके कारण वो इस अनुभव को पाने के लिए, इस मुलाकात को पाने के लिए तैयार किए गए या उसके लिए योग्य बने। उनकी योग्यता क्या थी? आप पतरस को देख रहे हैं जो आगे चलकर यीशु मसीह का इनकार करता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनकार करता है। फिर भी वो इस योग्य था कि वो उस पर्वत पर परमेश्वर के साथ चढ़ता। तो क्या हम ये कहें कि परमेश्वर को पता नहीं था कि ये आगे चलकर मुझे इनकार करने वाला है? क्या परमेश्वर ये नहीं जानते थे कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार ये व्यक्ति उनका इनकार करने जा रहा है? तो कौन सी बातें थीं जिन्होंने इन प्रेरितों को इस बात के योग्य बनाया? परमेश्वर के दास, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक ही चीज़ है और वो है परमेश्वर का अनुग्रह। उसका वचन कहता है कि मैं जिस पर चाहूँ उस पर दया दिखाता हूँ। ये बात मुझे सुलेमान राजा की तरफ ले जाती है। सुलेमान राजा को परमेश्वर के साथ ऐसा अनुभव मिला जो स्वयं उसके पिता दाऊद को नहीं मिला था। दाऊद राजा ने जितनी मुलाकातें परमेश्वर के साथ की वो हमेशा से ही किसी नबी के द्वारा ही हुई थी। परमेश्वर ने कभी भी दाऊद से जो है साक्षात बातें नहीं की, लेकिन
सुलेमान राजा को ये सौभाग्य था कि उसकी ज़िंदगी में 2 बार परमेश्वर ने सीधे तौर पर उससे बात की थी। परमेश्वर ने सुलेमान से बातें की। तो आपको इन दोनों ही उदाहरणों को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। आपको पतरस की ओर देखना है, आपको सुलेमान के जीवन को देखना है और सोचना है। प्रश्न ये उठता है कि सुनो, सुलेमान ने भी तो अंत में गलतियां की। सुलेमान के विषय में अगर देखा जाए तो जब परमेश्वर उससे बातें कर रहे थे, उसको स्पष्ट रीति से बताया कि तुझे ये बातें नहीं करनी है। प्रभु ने उसे बताया था कि कौन सी चीजें जाल बनकर उसके लिए बिछाई जाएंगी और किन बातों के कारण उसका नाश होगा। कौन सी चीजें हैं जो उसे परमेश्वर से दूर ले जाएंगी। प्रभु ने उससे कहा था कि इन स्त्रियों से तू दूर रहना। और इसके बावजूद भी सुलेमान ने जो है सैकड़ों शादियां की। और फिर वचन कहता है कि जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उसकी उन्हीं पत्नियों ने उसका हृदय जिंदा परमेश्वर से हटाकर उनके देवताओं की ओर ले गए। तो ये बहुत दिलचस्प बात है, हमें इसको पढ़ना है कि जब वो जवान था, वो मजबूत था, वो स्त्रियां उसके हृदय को परमेश्वर से दूर नहीं ले जा सकी। लेकिन जैसे सुलेमान की उम्र बढ़ती गई, आप देखते हैं कि उसका बल घटता गया। जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई और उसमें तर्क करने की क्षमता घटती गई, उसके उस कमजोरी के क्षणों में इन स्त्रियों ने उसका हृदय उसके परमेश्वर से दूर कर दिया। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के पाप में पड़ चुका है, ये सोचकर उसमें नहीं जाता कि मैं इन परिस्थितियों को या इस हालात को संभाल नहीं सकता। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं या ये सोचते हैं कि ना मैं तो इसे संभाल लूँगा। और उसके बाद एक वो कमज़ोर क्षण आता है। अगर आप उस पाप के वातावरण में बने रहें तो दुश्मन जानता है कि कभी ना कभी एक कमज़ोर समय आएगा जब वो आपको आपके परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। उसके बजाय बेहतर तो ये होगा कि आप उस वातावरण में अपने आप को डालें ही नहीं जहाँ एक कमज़ोर समय में आप अपने आप को पाप के अधीन गिरा हुआ पाएं। इसीलिए बाइबल हमसे कहती है कि पाप से दूर भागो। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप मजबूत हैं तो निश्चय ही ऐसा समय जल्द ही आएगा जब आपकी इंद्रियां कमज़ोर हो जाएंगी और आप तुरंत किसी बात का पलट जवाब नहीं दे पाएंगे। आपने अपने चारों तरफ जो सुरक्षाएं बना रखी हैं वो आपने नीचे कर ली हैं। तब आप उन दूसरे देवताओं की ओर मुड़ जाते हो और सुलेमान के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन सारी बातों के बीच हमें ध्यान इस बात पर देना है कि हमारा परमेश्वर जो अंत को प्रारंभ से ही जानता है। क्या यीशु मसीह नहीं जानते थे कि पतरस उनका इनकार करने वाला है? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो जानते थे। क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि सुलेमान भी अपने आप को नाश के पथ पर ले जाएगा और परमेश्वर से दूर हो जाएगा? हाँ, प्रभु को पता था, 100% पता था। इसके बावजूद भी इन दोनों ने परमेश्वर से मुलाकातें की। इसके बावजूद भी पतरस उन चुने हुए 3 में एक था जो यीशु मसीह के स्वरूप को बदलता हुआ देख सका। तो अगर ये सारी बातें हैं तो हमने सवाल पूछना है कि किन बातों ने इन लोगों को इस बात के योग्य बनाया कि वो ये मुलाकातें या अनुभव पा सके। कि वो परमेश्वर जो उनके अंत को शुरुआत से ही जानता था, उसी परमेश्वर ने उनके भविष्य को इस योग्यता के दायरे में नहीं लिया। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर हमारे बीती जिंदगी के आधार पर भी हमारा चुनाव नहीं करता या हमें योग्य नहीं बनाता इन मुलाकातों के लिए। तो वो भविष्य को भी जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरा आज्ञा पालन नहीं करेगा। फिर भी परमेश्वर ने ये निश्चय किया कि वो सुलेमान से मुलाकात करेंगे।
ये जानते हुए भी कि ये व्यक्ति 3 बार मेरा इनकार करने वाला है, फिर भी परमेश्वर ने उसे उस ऊंचे पर्वत पर लेकर गए। तो अगर परमेश्वर मेरी बीती जिंदगी की बातों को इन बातों की योग्यता में नहीं ले आता, मेरे बीती जिंदगी को वो क्षमा कर देता है, और ये जानते हुए भी कि आने वाले दिनों में आप उसकी आज्ञा पालन नहीं करोगे, ये जानते हुए भी कि आप उसी फल को खाओगे जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था कि ये फल तू नहीं खाना, फिर भी वो उस बागीचे में उतर कर आता है और आकर इन बहुत ही कीमती लोगों से बातें करता है। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो ऐसा है। परमेश्वर के लोगों, हमारा मालिक ऐसा है। वो हमारी जो सीमाओं को जानता है, वो हमारे व्यर्थता को जानता है, और इनके बावजूद भी, ये जानने के बावजूद कि हम उसे निराश करने वाले हैं, वो कभी भी उसकी उपस्थिति को हमसे दूर नहीं करता। और फिर भी सभी लोगों को उसकी उपस्थिति, उसकी मुलाकातें नहीं मिलती। वो अपने आप को केवल इसलिए जाहिर करने के लिए तैयार है क्योंकि वो आपके आज की श्रद्धा और आपकी आज की प्रतिज्ञाबद्धता को देखता है। और तब आप मूसा को परमेश्वर ने जो जवाब दिया उसके विषय में सोचते हो, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि कोई मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। मूसा, तू ऐसी बातें मांग रहा है जिनको मांगकर लोग बचते नहीं हैं। फिर भी परमेश्वर कहता है मैं कोई रास्ता बनाता हूँ कि अगर तू उस चट्टान के बीच छुप जाएगा, अगर तू उस चट्टान के अंदर छिप जाएगा। मसीह यीशु में ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ये सारी बातें हम तक आ सकती हैं या हम योग्य ठहराए जा सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि यीशु मसीह इन तीनों को अपने पास बुलाते हैं, सभी को नहीं। इन पिछले कुछ हफ्तों में परमेश्वर ने उसके अनुग्रह में जिन बातों को हमें सीखने का मौका दिया है, ये विषय सभी के लिए नहीं है। हर एक को ये विषय दिलचस्प नहीं लगेंगे। कुछ लोगों को तो यही विषय बहुत ही नीरस लगेंगे, उन्हें बोरियत महसूस होगी। क्यों? क्योंकि उनके मसीही जीवन में वो जहाँ है वो वहीं पर उसी आरामदेह जगह में रहना चाहते हैं। और यीशु मसीह उन्हें कहाँ आने को बुला रहे थे? वो उनका स्वाभाविक जो वातावरण था वहाँ से उन्हें निकालकर एक ऊंचे पर्वत पर उन्हें ले जाना चाहते थे। यीशु मसीह उन्हें उस ऊंचे पर्वत पर बुलाने के पीछे एक और कारण भी है। अगर आप एक बार फिर मेरे लिए वो वचन पढ़े, 9वां अध्याय 2 वचन, कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। यीशु मसीह उन्हें उस ऊंचाई के पर्वत पर ले जाने का कारण, उसका कारण ये था कि अब उनके और बाकियों के बीच में एक अलगाव था। वो उन्हें बाकियों से अलग कर रहा था, एक अलगाव ला रहा था इस संसार और उस पर्वत के बीच। यानी कि पर्वत की ऊंचाई पर जो कुछ भी हो जाए, जो नीचे हैं उन्हें उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा। ये अलग होना, ये अलग किया जाने इतना स्पष्ट था कि ऊपर पर्वत पर जो भी आवाज़ें उन्हें सुनाई दे, नीचे जो लोग हैं उन्हें वो आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी। ऐसे कुछ अनुभव हैं, मुलाकातें हैं जो केवल उनके लिए है जो उस ऊंचे पर्वत पर जाने की कीमत चुका सकते हैं। ध्यान दें कि ये उसी के अपने चेलों के विषय में था। अगर आप पढ़े ध्यान से तो लिखा है कि जब वो नीचे उतर कर आए तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये बातें तुम किसी और से नहीं बताना। हाँ डैड, मैं ये देखता हूँ मार्कुस 9 अध्याय 9 वचन में ऐसा लिखा है कि पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। कब तक नहीं कहना? जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी नहीं उठता।
आप कल्पना करें कि जब तक प्रभु मुर्दों में से फिर जिंदा नहीं हुए, दूसरे चेलों को इस बात की खबर भी नहीं थी। एक बार और पढ़ेंगे हम इसे। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से भी न कहना। किसी से भी, यानी कि बाकी चेलों से भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रकाशन हैं जो आपके अपने मित्र, जो आपके साथ आपके बाइबल कॉलेज के क्लास में साथ बैठे होंगे, वो शायद आप ही के साथ, आप ही की कलीसिया के सदस्य हैं। शायद उनके घर का नाम और उनका आखिरी नाम भी आप जैसा ही है। प्यारो, ऐसी बातें हैं जो प्रभु उन्हें नहीं आपको बताता है, और वो उनके विषय में आपको आज्ञा भी देता है। क्या आपको याद नहीं कि प्रेरित पौलुस जब स्वर्ग से जो है उतर कर आया, तो वो कहता है कि मैंने वहाँ कुछ ऐसी बातें देखी जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वो ये कह रहा है कि कुछ प्रकाशन है जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कुछ चीज़ें हैं जो इतनी व्यक्तिगत हैं जिनके विषय में मैं आपसे बातें भी नहीं करूंगा। इसके बावजूद भी ये लोग परमेश्वर की देह का हिस्सा हैं। हाँ पास्टर जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ 2 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 3 वचन से ऐसा लिखा है कि मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। तो पौलुस ये कह रहा है कि सुनो, तुम सभी यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हो, लेकिन कुछ बातें जो मैंने देखी हैं वो तुम्हें बताऊं, इसकी अनुमति मुझे नहीं दी गई। ये जो जानकारी है वो सभी के लिए नहीं है। तो कुछ जानकारियां हैं जिनके विषय में प्रभु ने ये कहा कि जब मैं मुर्दों में से जिंदा कर उठा लिया जाऊं, तब तुम उसे बांट सकते हो। मैं ये सोचकर अचंभित होता हूँ कि ये बात हुई कैसे होगी। जब यीशु मसीह के मुर्दों से ज़िंदा होने के बाद एक दिन पतरस, यूहन्ना, याकूब ने दूसरों को बुलाकर कहा होगा कि आप लोगों को याद है एक बार हम गए थे कहीं और आप हंस रहे थे हम पर, जब प्रभु ने हमसे कहा था कि पिछली बार जिस ऊंचे पर्वत पर गए थे उससे भी ऊंचे पर्वत पर जाएंगे, और हमें साथ ले गए थे और आप सब जो है शॉपिंग करने चले गए थे। आप बहुत हंसे थे हम पर। आप कह रहे थे जाओ पहाड़ चढ़ो, हम तो जा रहे हैं कहीं कुछ अच्छे पकवान खाएंगे, और तब वो जाकर उनसे कहेंगे देखो जब आप आराम कर रहे थे हमने ये सुंदर सा अनुभव पाया था। और ये एक फ़ायदा है कि ये 3 लोग गए थे, तीनों लोगों की एक ही कहानी थी, कोई एक ये कहानी नहीं बता रहा था। इस घटना के 3 गवाह थे और तीनों ये कह रहे थे हाँ हम थे, हमारे सामने ही ये हुआ, और मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा अभी हो रहा है। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप परमेश्वर के साथ हड़बड़ी न करें। कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ही बारीकी से इस वचन को सुना है और उस पर ध्यान दिया है। इसीलिए सबके लिए नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए प्रभु की ओर से ये न्योता है कि आओ हम और ऊंचा चले। वही न्योता आप कई बार यूहन्ना के पास आता हुआ देखते हो जब वो पतमोस के टापू पर है। कहता है आओ यहाँ ऊपर की ओर आ जाओ यूहन्ना। तो वो लोग जो जानकर अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करते आ रहे हैं, वो लोग जो पूरे बलिदान के साथ उस ऊंचे पर्वत पर चढ़ते रहे हैं, उसके लिए बल की ज़रूरत है, उसके लिए समय की ज़रूरत है और उसके लिए पैसों की भी ज़रूरत है। आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपकी इच्छा शक्ति ज़रूरत होती है कि आप उस पर्वत के ऊपर चढ़े, विशेष करके तब जब बाकी लोग उनकी मनमर्जी कर रहे होते हैं। तब आप अपने जीवन को उस पर्वत पर चढ़ने के लिए समर्पित कर रहे हो जहाँ पर जाकर आप उससे मुलाकात कर सकते हो। ऐसे ही लोगों से परमेश्वर आज की सुबह इस वीडियो के द्वारा बातें कर रहा है। वो अब भी अपने आप को हम पर जाहिर करने का इंतज़ार कर रहा है।
इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या ये किसी वीडियो के द्वारा एक बेदारी आ सकती है। हम जानते हैं कि कुछ बेदारियां जो है किसी स्थान पर शुरू हुई थी, किसी परमेश्वर के सेवक के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर इस माध्यम का, तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अभी इस समय जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, कुछ लोग रो रहे हैं और उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि वो क्यों रो रहे हैं। कुछ लोग तो आहें भर भर के रो रहे हैं और उनको अंदाज़ा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनमें से कुछ के परिवार के जन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वे सारे लोग इस जागृति का हिस्सा नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों के चेहरे पर आंसू बहना रुके नहीं हैं जब से हमने शुरुआत की है। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह बहुत ही बारीकी से उन लोगों को न्योता दे रहे हैं जो हर बलिदान देने के लिए तैयार हैं। आप शायद ये सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता होगा कि ये मेरे लिए है। अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए है, क्या ये व्यक्ति मैं हो सकता हूँ, तो मैं आपको समझने में मदद करना चाहता हूँ। और ये कैसे होगा कि आप अपने हृदय में झांक कर देखें और देखने की कोशिश करें कि क्या आप जहां आप आत्मिक रीति से हैं वहां रहते हुए उस जगह से थक गए हैं, या आप ये कह रहे हैं कि मैं जहां हूं वहां खुश हूं। जहां आप हैं क्या आप उसी से खुश हैं, या आप जहां हैं उस जगह को देखकर ये कहते हैं नहीं, इससे भी ज़्यादा कुछ होना ज़रूरी है, इससे भी ज़्यादा और कुछ होना ज़रूरी है। अगर आपके दिल की पुकार ये है और जैसे आप ये वचन सुन रहे थे, मानो आपका हृदय इस रीति से उत्साहित हो रहा था, मानो उस लिफाफे पर, उस चिट्ठी पर आपका नाम लिखा है, तो आपसे मैं कह रहा हूँ, आपको परमेश्वर कह रहा है कि तुम बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो, हर एक बोझ को उतार दो, क्योंकि तुम पर्वत पर चढ़ने जा रहे हो और जिस बोझ की तुम्हें ज़रूरत नहीं है उसे उतार कर एक तरफ रख दो। हर वो चीज़ जो पूरे हफ्ते भर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, उसे आपके जीवन से अलग होना है। एक रीति से अपने आप को उस दीवार पर आप ठोक दो। जो कर सकते हो करो, ताकि तुम अपने आप को अलग कर सको। जिस रीति से हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और ये कहो कि प्रभु मैं यहाँ हूँ और मैं उन चंद थोड़े चेलों में से एक होना चाहता हूँ जो आपकी महानता और आपकी महिमा का अनुभव कर पाएंगे। वो पुकार, वो दर्द जो आपके अंदर है, वो इस बात का चिन्ह है कि जहाँ आपने होना चाहिए आप वहाँ नहीं हैं। आपको तो परमेश्वर की महिमा के अगले स्तर पर होना चाहिए था। उसकी महिमा का वो ऊंचा स्तर आपके लिए है। पास्टर, अगर आपको पता हो या आपको कोई ऐसा व्यक्ति पता हो जब उसके शरीर के किसी अंग की हड्डी खिसक गई हो, हड्डी टूटी नहीं है, बस अपने जगह से हिल गई है, तो ऐसे समय में क्या होगा? बहुत ही दर्द होगा और जिस रीति से उसे काम करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। और क्या होगा? उसके शरीर का वो हिस्सा सूज जाएगा। अगर मेरी कलाई की एक हड्डी अपनी जगह से हिल जाए तो उस कारण मैं अपना पूरा हाथ इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा और उसका दर्द मेरे पूरे शरीर को महसूस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक हड्डी अपनी जगह पर नहीं है। तो ऐसे हालातों में वो जो आराम की कमी है, वो जो दर्द है, वो एक अच्छा चिन्ह है, क्योंकि वो दर्द आपको ये एहसास दिलाता है कि आप उस जगह में नहीं हो जहां आपको होना चाहिए। और वो पवित्र आत्मा की ओर से एक न्योता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि गहराई गहराई को पुकारती है। आपके अंदर ऐसा कुछ है जो परमेश्वर के उस आवाज़ को
प्रति उत्तर दे रहा है इन अंतिम दिनों में। परमेश्वर के लोगों, अंतिम दिनों के विषय में कुछ बातें जो मैंने देखी, उनको देखकर जो है दिल दहल जाता है। वो बातें बिल्कुल आराम की नहीं है, आरामदेह की नहीं है। देखिए, हम आज जिस समर्पण में चल रहे हैं, अगर उसी में चले तो हम अंतिम दिनों में किसी भी तरह जीत नहीं पाएंगे। आज हमारी परमेश्वर के प्रति जो लगन है, वो इस मध्य रात्रि के समय हमारी सुरक्षा करने के लिए काफ़ी नहीं है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन से अलग करनी है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये जो संदेश आया है, ये बहुत ही बारीक समय पर हमारे पास आया है। ये एक बहुत ही ज़रूरी समय है जहाँ पवित्र आत्मा कहता है कि मेरी दुल्हन को तुम तैयार करो, क्योंकि जो चीज़ें आने को है, हिंसा तो बढ़ती ही जाएगी, अराजकता और भी बढ़ेगी। इस अराजकता को बढ़ना ही है और बड़ी संख्या में लोग कानून को तोड़ने में विश्वास करेंगे आज़ादी के नाम पर। इस संसार में और भी नई नई बीमारियां लागू की जाएंगी। राष्ट्रों की जो अर्थशास्त्र है, वो बहुत ही कठिनाई के समय से गुजरने वाली है। इन सारी चीज़ों के बीच में अगर कोई बात हमें सिर्फ किसी तरह इससे बचकर निकलने नहीं, मगर इन बातों में विजयी होने में मदद करेगी, अगर हमें मसीह का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बनकर सामने आना है, अगर हमें ऐसे लोग बनना है जो डरते नहीं बट महान विजेता में चलते हैं, इन बातों के लिए हमें परमेश्वर से एक मुलाकात की ज़रूरत है। हमें एक गहरी अधीनता की ज़रूरत है। हमें एक ऐसे बदलाव की ज़रूरत है जो मनों के नए होने के कारण हमारे जीवन में आता है, जो परमेश्वर के वचन के सुनने की वजह से होता है। यही बातें इस समय आपके साथ हो रही हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक भारी बोझ, मैं देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति के हाथों में मानो कुछ बोझ बांध दिया गया है, और हर वो बोझ जो आपको इन बातों को करने से रोकता है, आपको नीचे दबाने की कोशिश करता है, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में वो बोझ आपके जीवन पर से काट दिए जाए अभी। रोब्राला मादियान ठतारिया नमा शखांतारिया बसंतो। तो प्रार्थना करना शुरू करे प्यारो, प्रार्थना करना शुरू करे। क्षमा ट्रकातारा बसेंटे थे। कोई अपने मुंह को खोल कर ये कहे कि प्रभु, आज की सुबह आपके इस न्योते का मैं उत्तर देता हूँ। कोई कहे कि प्रभु, इस न्योते का, इस वीडियो के द्वारा मैं जवाब दे रहा हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपकी बुलाहट का जवाब दे रहा हूँ। पवित्र आत्मा, मैं यहाँ हूँ और मैं बाकी चेलों से अलग होने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे परिवार के बाकी सारे लोगों से भी मैं अलग होने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरे सारे दोस्तों से भी अलग होने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं इस बात के योग्य बन सकूं कि मैं आपके साथ उस पर्वत पर आ सकूं, ताकि मैं उस अनुभव को पा सकूं जो मुझे मेरे मंजिल की तरफ ले जाएगी। प्रभु अपनी दुल्हन को आवाज़ दे रहे हैं। वो चाहता है कि हम उसे जानें। वो चाहता है कि हम उसके मन को जानें। वो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति के वास्तविकता को, सच्चाई को जान सकें। आपके लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या आप उसका जवाब देंगे? क्या इस हफ्ते आप उसे जवाब देंगे? क्या इस हफ्ते आप अपने आप को अलग कर लेंगे? क्या इस हफ्ते आप वो सब कुछ करने को तैयार हैं जिसके द्वारा आप स्वर्ग के ताल को पा सके? क्या आप वो व्यक्ति हैं जो ये करने जा रहे हैं?
परमेश्वर के लोगों, हर एक छोटी सी छोटी ध्यान भटकाने वाली चीज जो दुश्मन आपके विरोध ला रहा है, हमें सबसे पहले उससे दूर भागने से शुरुआत करनी है। हर दिन यीशु मसीह के साथ चलते हुए हम इन विजेताओं को पा सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत अब होती है, उसकी शुरुआत आज होती है। उन ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को आप अपने से इनकार करो, उनसे दूर भागो। उस दुश्मन के लिए अपने जीवन के सारे दरवाजे बंद कर दो। फिर भले ही वो बातें किसी मनुष्य के द्वारा, आपके अपने दोस्त के द्वारा या किसी परिवार के सदस्य के द्वारा आपके जीवन में आ रही हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। उस दरवाजे को बंद कर दो। याद रखें कि आपको कुछ महान बातों के लिए अलग किया गया है, जो किसी आंखों ने नहीं देखा, जो किसी कानों ने नहीं सुना। वैसी परमेश्वर की उपस्थिति का जाहिर होना, वो मेरा अधिकार है। पास्टर, मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते को जोड़कर अगर हम देखें तो हमारी नाव का तैरना शुरू होना ही है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये बातें सभी के लिए नहीं है, मगर वे लोग जो ध्यान से सुन रहे हैं, वे लोग जिनका पवित्र आत्मा जिनके हृदय को तैयार कर रहा है, उनके लिए ये जो सप्ताह है महिमा से भरा हुआ होगा। अगर आप पिछले हफ्ते के संदेश को और इस संदेश को बार बार सुने, तब तक जब तक ये आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो जाता, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं नबूवत के तौर पे कह रहा हूँ कि आपका जहाज़ तैरने को है, वो जहाज़ तैरने को है। मैं आशा करता हूँ कि मैं आप में से कुछ लोगों की मदद कर पाया हूँ और हम अगले हफ्ते दोबारा मिलकर इन्हीं बातों को आगे ले जाएंगे। और मैं आपसे बुधवार के दिन फिर मिलने को उत्सुक हूँ। परमेश्वर के लोगों, इस हफ्ते आए हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं। हम पिछले हफ्ते की और इस हफ्ते की वीडियोस को साथ में देखें और तब तक देखें जब तक हम उस वचन के साथ एक नहीं हो जाते, जुड़ नहीं जाते। और जैसे हमारे नबी कहते हैं, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, प्रभु के महान हाथ के नीचे बने रहें। प्रभु आपको आशीषित करे।